Hello everyone, welcome to the Manisha Mishra show. And today we have an incredible guest with us, Miss Kriti Ashish, who requires no introduction, but I would like to introduce her first on my part. She is an ambassador to DRDC. She is an author of the book Don't Remember My Name, SDG speaker, philanthropist, philomath, mystic, spiritual individual. She is in spirituality for quite so long. She has accomplished a lot in her life in terms of winning a lot of national and international awards. She's creating an incredible impact in this world by serving this world with her wisdom and years of expertise and experience from the space where she is coming. She comes with a very, very strong story of herself. So, the story which she has written, which she wants to deliver to the world, is completely written in a book. Don't remember my name. All of you can Kriti, definitely don't go remember the and name. Yes. yeah, so everyone can definitely go and read that book. I must tell you, it's an incredible story, and a lot of people can get a strong motivation and inspiration from her own journey. So thank you so much, ma'am, for joining in and accepting my invitation for the Thank you, podcast. Manisha. Hi, namaste. Thank you, Manisha. Lovely meeting you, and it's my pleasure. Thank you. So, let's begin with the show. I would love to ask you the first question, which is can you please share with us a little bit about your personal journey, which has led you towards spirituality and mindfulness, and how does it help in maintaining mental well-being? Okay. This is a lengthy question with so many things, including it, and I'll get with the both languages, Yeah, Hindi and sure. English, bilingual, so that the audiences are equally Mm. interested in those. Yeah, yeah. So see, it was a coincidence that few people are chosen once. So I Mm-hmm. never knew that I was the chosen star seed, or I happened to be in a family reign which belongs to the healers family. And I am the last, you can say, in this decade as a generation of a twin flames. And this is I'm researching on that मैं ऐसा कुछ करूं जिसपे मुझे इस चीज को आगे मैं एलाबरेट करके और बता सकूं, पर वो अभी वर्क शुरू हुआ है। जब आपने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल, सो कुछ हादसे हमारी लाइफ में ऐसे घटित हो जाते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपनी एक लाइफ को और ऑर्डिनरी तरीके से कैसे जी सकें। The word is extraordinary, so definitely that word strikes to my life. एंड 3 महीने की थी तब एक हादसा हुआ था, एंड माय मदर रेस्क्यूड मी, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, दैट आई वाज बीइंग human trafficked and sold by my father, who's an advocate, and she rescued me, and I belong to very good family persona. Uske baad, when I was 14, I happened to be by chance a survivor of Kandla earthquake, where my aunt was a chief officer in Kandla port. And it was the day of 26 Jan of Republic Day, and I was just 14 years old. उसके बाद एक हादसा होता है when you lost your child and you have a pleasant apervia, or extreme case when you have a chances that you will lose your eyesight, you will lose your kidneys, and ऊपर से आपका uterus भी एकदम से पर्पलिश हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस आती गई, फिर मेरे को व्हील चेयर पे रखा गया और काफी डिप्रेशन रहा। फिर आई स्टूड अप, जिसमें मेरी मम्मा ने मुझे हेल्प की, बहुत सिंपल तरीके से की, लेकिन मैंने फिर वापस से एक एक्सपोर्ट हाउस स्टार्ट किया था, बिकॉज एट द एज ऑफ 19 मैंने जो मेरे गुरु हैं राघवेंद्र सिंह राठौर, उनको एज ए डिजाइनर असिस्ट किया था।
उसके बाद मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपना कुछ एक्सपोर्ट हाउस खोलूं, बिकॉज मेरा टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने कांच के नाम से वो शुरू किया था। ये सारी चीजें चल रही थी, पर इन दौरान कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो बैक ऑफ द माइंड थी, और वो ये थी कि मैं योगा या ध्यान में 4 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मेरी नानी जो थी वो आयुर्वेदिक रतन भी थी और योगाचारी भी थी, आर्य समाजी भी थी। एंड शी वॉज प्रिंसिपल टू आर्य समाज स्कूल जोधपुर। तो वो वेद ज्ञान वो सारी चीजें मतलब टिपिकली जो होती हैं, प्लस हमारी रूट्स जो थी वो हैदराबाद से जुड़ी हुई थी। तो मेरे बाबा जो थे, ही वॉज मोर इनटू रेसलिंग, इंग्लिश स्टाइल्स, उर्दू चीजें। एक ओके। अलग ही उनकी फकीरियत थी, जो मतलब एक मस्त मौला इंसान जो सूफी को चीजों को लेकर सूफीज्म को ज्यादा एडमायर अडोर करता हो। और यहाँ पे एकदम संस्कृत वाला इंसान जो मेरी बाया थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो एक सिंगल बच्चे में एकदम से आया, और वो सारी चीजें मुझे मिलने लगी। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे को नरिशमेंट की जरूरत होती है, एक दुर्गा को सारी चारों तरफ से अपने अस्त्र शस्त्र चीजें मिलने लगी। तो मुझे भी ये एनवायरनमेंट मिला। मेरी ममा वॉज अ प्रोफेसर, मेरी आंट वॉज आईपीएस ऑफिसर, और मैं अपने नाना नानी के साथ रही थी। वी हैड अ रेस्टोरेंट, तो बिजनेस भी हो गया, वे चीजें। इन सब माहौल के दौरान मैंने एक था मेरे में ये शुरू से, आई यूज टू सिट अलोन एंड ऑब्जर्व थिंग्स सिंस आई वॉज वेरी यंग। अगर मुझे कोई शिकायत भी करनी है कि ये मतलब जैसे सर्वेंट काम नहीं कर रहा है, तो मैं लिख कर बाबा तक वो चिट्ठी पकड़ा देती थी कि ऐसी ऐसी बात है, ये हुआ है। सो आई वॉज वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ एवरीथिंग। ये पौधा ऐसा क्यों है, ये पत्थर ऐसा क्यों है, फिर इसका क्या हुआ। तो हिस्ट्री में जाना बहुत शुरू कर दिया था मैंने। आई वॉज नॉट नॉर्मल तो मतलब थी, लेकिन एक कुछ चीजें थी जो बड़ी रीडिफाइन करने की कोशिश करती थी। सो दैट्स हाउ इट वाज। बट जब मैं खुद माँ बनी उससे पहले मुझे सच में ही नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेकन कॉन्शियसली, टू बी ऑनेस्ट। स्पिरिचुअल नॉर्म्स पे होने का मतलब ये नहीं कि आपको पता चल जाए सारा। पता तब चलता है जब वो डिवाइन की इच्छा होती है, जब ईश्वर की इच्छा होती है। और ईश्वर की यही इच्छा थी कि एज ए मिस्टिक मुझे उतारा गया, मेरी कॉन्शियसनेस को रेज किया गया। और फिर मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, देर इज समथिंग विच आई एम लॉन्गिंग फॉर, और मैं पिछड़ी हुई हूँ कोई चीज में जो मुझे करना है एज अ सोल मिशन, एज ए ह्यूमन। तो मैंने वो कुछ नहीं किया था, वो अब मैं कर रही हूँ। दिस इज हाउ इट वॉज। Amazing. You're the chosen one. I loved it. Nice, very nice. And it really happens with all of us ना, कि मतलब हम बहुत कुछ भी लाइफ में अचीव कर रहे होते हैं, पर कोई कॉलिंग एक अंदर रहती है, तो वो हमें अपने आप ही आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाते रहते हैं। एज यू सेड कि लाइफ हैपेंस और बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है जिन जो हमें डायरेक्शन दिखाती है कि हमें उस बात पे जाना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल इनक्रेडिबल स्टोरी। इट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। Okay, so I would love to jump into another question, which is मतलब हम अभी देखते हैं ना कि दुनिया बहुत फास्ट पेस पे चल रही है। इन टुडेज जी। वर्ल्ड द पीपल आर मूविंग सो फास्ट, तो ऐसे में ना लोग मतलब अपना मेंटल जो स्टेट है उस पे बहुत फोकस नहीं कर पाते, पर जब लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है, कोई चैलेंज आता है, तो वो एकदम से शट डाउन हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो मतलब अपनी मेंटल वेल बीइंग को स्टार्ट से लेकर ही थोड़ा नर्चर करते रहे, ताकि चैलेंजेस जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जब वो आए तो आप एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग की तरह थोड़ा रिस्पॉन्ड कर पाओ। मनीषा, आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। पहली चीज, एज ए ह्यूमन, ठीक है, चलो हम तो हीलर्स हैं, यू आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ हीलर। बट जो हम हीलर्स नहीं हैं, बट हम हैं तो हम्म। ह्यूमैनिटी में ही, राइट। या। वी ऑल आर सोल्स एंड वी नो दैट। ओके। कोई ना कोई एक्सटेंट में हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं। हम्म। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं और हर किसी के साथ ये चीजें होती हैं, होती आई हैं और होती रहेंगी जब तक हम एक एग्जिस्टेंशियल
उसमें वैल्यू में रहेंगे, हमें वैलिडिटी चाहिए होगी कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, राइट? हम्म। कोई कुछ भी हो रहा है, क्या वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें उसे डेड सीरियसली अपनाना चाहिए? चाहे हम्म। हमारे लाइफ में वो चीज एग्जिस्ट करे, चाहे वो चली जाए, हम्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर ब्रीदिंग। और ये हम्म। मैंने 14 साल में सीखा था, जब मेरे पास लाशों के ढेर थे, जहां पे मैं ये देख रही हूँ कि 9 करोड़ की एक होटल है, वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता। चारों तरफ लाशें थी, जलाया जा रहा था, सड़ रही थी, कुछ दफन हो गई जो दिखी भी नहीं। तब मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, करे मेरी नाक में से सांस तो आ रही है, मतलब मैं तो जिंदा हूँ नाइट सूट में। मेरा पूरा नाइट सूट खून से भरा हुआ था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई इंसिडेंट। चाहे जैसे भी हालात हों, योर लाइफ एंड यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। प्लीज, जो भी हो रहा है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास होगा, दिस आई वॉन्ट, दिस आई डोंट वॉन्ट, दिस विल कम, दिस आई डिजायर, दे हार्डली मैटर। It's just a friction of a moment and seconds that you think, and that thought aggressively gets into your mind, और वो एक सोच सच में तब्दील हो जाती है। सच्चाई ये है कि आप जब से पैदा हुए हो, क्या आप कुछ ले जाओगे क्या? नहीं। कपड़े लत्ते, कुछ पार्टनर तक नहीं ले जाओगे आप, राइट? बच्चे तक नहीं ले जाओगे, खुद का जना भी नहीं साथ में जाएगा। क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ आए थे? नहीं आए थे। तो फिर रोना किस चीज का? अगर किसी चीज को जाना ही है तो वो जाएगा ही, और किसी चीज को आना है तो आने दो, एक्सेप्ट करो। ऑलवेज बी इन सरेंडर मोड रादर देन डिनाइंग एंड एक्सेप्टिंग इट। Okay. अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इट्स फाइन। अगर आप डिनाई कर रहे हो, इट्स फाइन। बट व्हाट इज द utmost प्रायोरिटी ऑफ अ सोल? एंड दैट इज टू सरेंडर, whether it happens or it doesn't even happen, whether I desire, whether I deny. आई एम इन स्टेट ऑफ मूड जहां चाहे जैसा भी हो, आई एम इन टू इट, आई एम इन टू माई स्किन, एंड एज ए ह्यूमन आई एम ब्रीदिंग एंड आई विल लिव with someone, without someone, with things, without things, without lust. Now lust doesn't mean that, lust is only with a partner or something. Lust is Mhm. shopping, lust is anything that you desire. Yeah. उन चीजों से हटना शुरू कर दो आप, क्योंकि वो सच्चाई है ही नहीं। प्रैक्टिकली हम्म। बता रही हूँ, बहुत छोटे संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि भाई मैं तो फुलफिल हूँ, मेरे को तो कोई परवाह नहीं, तुम मुझे सूखी रोटी खिला दो, दही के साथ खिला दो, आई डोंट इवन केयर, उस दिन आप जीना सीख जाओगे। वो मजा अलग ही होगा फिर। Wow. दैट्स हाउ आई थिंक। Beautiful. That surrender word, that was the essence of whatever lesson you want to give to us. And amazing. This really helps us a lot when we surrender in front of Almighty or the superpower. बिकॉज I want to interfere you, Manisha. एक चीज है, everybody say well-being. I want to go to therapist. I want to go to some healer. I want to go. जाने की जरूरत है क्या? क्या वो जो तुम्हें समझा रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हारे दिल और Hmm. आत्मा को वो चीज नहीं पता? वो तुम्हें हील कर लेंगे, तुम खुद को हील नहीं कर सकते? क्या हम इतने पावरफुल हो गए कि हमसे भी पावरफुल ह्यूमन बींग्स हैं? एज अ कॉमन सेंस आई एम टेलिंग यू। हालांकि हैं, Hmm. गुरु हैं, गाइडर्स होते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन Hmm. खुद में फुलफिल होना सीखो, ताकि वो दर्द अगर हो भी तो उसको अच्छे से हील कर सको। जो ब्लॉकेजेस हैं, जो लाइफ में ट्रॉमास होते हैं, जिस वक्त आप उसे हील नहीं करते हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स छोड़ते हैं। सबके साथ होता है ट्रॉमा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस धरती पे आया उसके साथ कुछ ना हुआ हो। जरूर हुआ होगा या होगा, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो। बस ओनली थिंग इज यू आर विद यू, दैट्स इट। Nice. You are with you. Loved it. Loved it. Thank you very much. आपने बहुत बहुत कॉन्क्रीट और बहुत कंसाइज वे में इस ब्यूटीफुल मैसेज को डिलीवर किया कि वी आर इन अवरसेल्व्स केपेबल टू केटर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। डिपेंड्स कि हम कितना अपने आप को बेटर तरीके से जानते हैं और कितना इस चीज पे भरोसा करते हैं कि कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे। सरेंडर वाले मोड में रहते हैं और इस चीज को याद रखते हैं कि
हमसे बेटर किस कोई और हमें नहीं जानता, और हमसे बेटर कोई और हमें हील नहीं कर सकता. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वाज अमेजिंग. So, I would love Thank to you. ask you another question, which is Okay. because you have a lot of experiences. So, as an ambassador and a speaker, how do you perceive this, like, मतलब माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअलिटी, इनका इंटरसेक्शन कहाँ होता है, और वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे ये कैसे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है? मेरे को ऐसा, मतलब आई पर्सनली बिलीव कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये आती इंडिया से है, मतलब हमारे से शुरुआत हुई तो ग्लोबल लेवल पे, पर अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, लोग बहुत ज्यादा इसको मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं. तो आप इसको कैसे देखते हो? जैसे मेरा TEDx हंसराज में हुआ था, एंड हम्म. आई वाज ऑन एक सेकंड नंबर टू, बहुत गर्व के साथ कह सकते हो कि किरण बेदी जी के बाद मेरा नंबर था वहां पर. तो मैंने एक ही चीज कहा था वहां पे, एक ही लाइन में मैंने बोली थी ये, कि मैं यहाँ ये बताने नहीं आई हूँ कि मैंने क्या क्या किया या आप मुझसे क्या सीखेंगे. मैं सिर्फ आपको ये जागृत करने के लिए आई हूँ कि आप कौन हैं, हु आर यू रियली टुडे. हम हम्म. बातें सबकी सुनते हैं, पर क्या उसको वाकई में हम कंज्यूम कर पाए हैं कॉन्शियसली. और जो इस दुनिया की बात की जो पढ़ते हैं, जो यूनिवर्स और कॉस्मिक लेवल की हम जब बातें सुनते हैं, जो बैंड्स चल रहे हैं, डोंट यू हम्म. थिंक कि हम एक अलग लेवल पे चल रहे हैं. खाना पीना सोना जागना, इसके अलावा भी एक जिंदगी है जो इस सब चीजों के बैंड्स के पार है. इनके हम्म. अलावा कमाने के, क्योंकि इकोनॉमिकली ही आजकल हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, उसका हम्म. स्टेटस कैसा है, ये कैसे जी रहा है, बस इतना ही पता है. सच्चाई में इतना खोखलापन है हम लोगों में कि हमारी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू खत्म या निल हो गई है. सिर्फ फोन पे ध्यान देने से जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज मिल जाए. नॉलेज इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, विजडम इज वेरी डिफरेंट थिंग. और अगर आप सच में पूछें, इंफॉर्मेशन पे ही हम लोग जी रहे हैं, तो हम तो नॉलेज के लेवल पे ही नहीं हैं. अब बात आई वेल बींग की. हम वेल बींग का स्टेटस लगाएंगे, अच्छा दूसरे ने भेजा फॉरवर्ड कर देंगे, अच्छा टी शर्ट पे भी पहन सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ कि दिल में उतारा है क्या उस वेल बींग को? वेलबींग किसे कहते हो? सिर्फ घूमने से वेलबींग हो जाएगी, या दोस्तों के साथ ठहाके लगाने से वेलबींग हो जाएगी? वेलबींग होती है जब आप अपनी कंपनी को पसंद करना सीखो, जब अकेले में ये तय कर लो कि मैं सफिशिएंट हूँ खुद के लिए, और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि 4 जनों को सफिशिएंट बना के जाऊंगा, जो लाचार नहीं हो. आज हमारे पास कहने को तो महंगे महंगे बैग्स पर्सेस हैं, पर हमारे दिल एकदम लाचार और हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट. हमें सहारा चाहिए, वी नीड एनीथिंग विच इज बेस्ड, हमें कुछ ना कुछ चाहिए. तो वो चीजें जब चाहिए वाली में आती हैं, उनसे दूर करने के लिए फिर दैट इज स्पिरिचुअलिटी. एक बहुत ही असभ्य इंसान ने कभी मुझसे पूछा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि हम्म. आपका मतलब स्पिरिचुअलिटी से कहीं ये तो नहीं है कि भूत प्रेत वगैरह? मैंने कहा एक बात बताओ, भूत प्रेत के ऊपर भी तो शिव है ना, हम्म. जो हम्म. उनका भी राजा हो. वो स्पिरिचुअलिटी है. आध्यात्म भूत ही तो है. तुम भूत, हम भूत, हम सभी भूत हैं. हमारे अंदर ही भूत है और हम ही भविष्य में है. सो दिस इज द वर्ल्ड एंड एरा ऑफ कल्कि. कल्कि का ही ये जमाना है. अब कलयुग को खत्म होने में 4 लाख अभी साल बचे हैं, बट दैट मीन्स दैट वी हैव स्टार्टेड इट. कितनी ग्राउंडिंग जरूरी है, कितना नीचे तक, रूट्स तक खुद को पहचानना जरूरी, वो इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट्स जस्ट बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपका कोई भी संबंध आपके प्रोफेशनलिज्म से नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ से नहीं है, बट एज अ सोल आप क्या हो. और ये चीज दुनिया को सिखाने वाला हिंदुस्तान है. ये चीज भारत ने सिखाई है दुनिया को कि भाई तुमने सारा जग जीत लिया, पर तुम क्या खुद को जीत पाए हो? हम्म. क्या तुम खुद के अंदर झांक पाए हो? तुमने देखा तुम्हारे अंदर कितना मैल है? और ये सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होगा. तुम शांति हम्म. में विश्राम में अकेले बैठो, तुम सोचो तुम्हें क्या चाहिए. इसके हम्म. अलावा क्या, इफ यू सी द द ट्रायंगल बैंड, द एसेंशियल नीड्स, द बेसिक नीड्स, द इकोनॉमिक नीड्स, द हम्म. लग्जरी नीड्स,
what is the utmost need? Need of a soul, right? Hmm. And that is spirituality. Wow. That is something, finding yourself is a spirituality. Finding divine into you and in others is a spirituality. Not making spirit guides and telling आज ही हो जाए, कुछ नहीं होगा, trust me. टाने टोटके से भी कुछ नहीं होगा. अगर आपका जमीर मजबूत है, कैरेक्टर मजबूत है ना, let me tell you, you are Shiv of your own self. पर उतनी हिम्मत और पावर आप में होनी चाहिए. That depends on you. Wow. Beautiful. I I just need some time to grasp it. It's amazing. I have saying very simple things because I have noticed that, people are faking their identities with different things. But who are they actually? They even don't know. And they are still finding, late in 80s, 90s, they are finding they don't know what is the purpose. Purpose is not just to bring things, being economically satisfied or, like famous and do Yeah. things. No. As a human being, आपने किया क्या है? That is a question mark still to your existence. Okay. As a human being, what do you desire? What's your utmost goal, the soul goal? क्या है आपका? It's very important to understand that. Because this और is a planet. It's not your home. आपको hmm, वैसे भी कुछ टाइम पीरियड बाद तो ये छोड़ना ही है. true that. Nice. We are living like as if हमने अमर फल खा लिया और हम पता नहीं कितने युगों तक यहीं रहेंगे. ये भी मेरा, ये जमीन भी मेरी, ये भी मेरा, ये सब तुम्हारा ही है. तुम कहाँ हो? That is the question. तुम कहाँ हो? Are you there? No, you're not. True, very true. Thank you so much for these insightful nuggets that you have shared with us. And I can't wait to ask you another question. I'm learning a lot, and I am very, very sure that the people who are going to see this podcast, they're definitely going to learn a lot from it and definitely going to search for their soul calling, who they are, what they actually want to achieve in their lives, except the material possessions and all. So thank you so much. The next question which I want to ask from you is what advice would you give to someone who is embarking on their journey towards spirituality? I mean, how if someone wants to start their spiritual journey, what are the steps one should take? Manisha, there are no certain steps that one can Okay. take for spirituality. Okay. Only thing is, if you act consciously, if you act consciously, you live consciously, you walk consciously, you eat consciously, and you sleep consciously, that are the steps to the spirituality and to connect to the divine. अब लोग कहते हैं खाने से कैसे स्पिरिचुअलिटी? तो भाई, कोई चीज आपने कंज्यूम किया, राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये रस तो है ना हमारे, ठीक है, और ये टाइम टू टाइम व्हील के जैसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है. बट खाना सबसे बड़ा एक स्पिरिचुअल नॉर्म है जिससे आप कोई चीज का कंजम्पशन करते हैं और खुद को ही डेवलप कर देते हैं. हमने वो कंज्यूम किया और हम ही वो बन गए. खाना खाया गया और हम ही वो दिख रहे हैं. हम खाना है. व्हेन यू ईट स्पिरिचुअली, यानी कि कॉन्शियसली आप खाते हैं, सोते हैं, सोचते हैं या फिर जीते हैं. In fact, your actions and your reactions, your thoughts and your blockages are also, to an extent, they meet these spiritual norms only when you surrender yourself and you act consciously. क्या मैं ये खुद के लिए सही करना, क्या ये जरूरी है करना, इसका आगे कोई भविष्य है, क्या ये जरूरी रहेगा? क्योंकि किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट का कोई भविष्य नहीं है. वो बस एक क्षणिक होता है. इट्स जस्ट वेरी सिंपल एंड देन इट्स गोज. जो रह जाए वो स्पिरिचुअल है. ओके, नाइस. मैंने वो बीके शिवानी
हमेशा ये बात बोलती है, जैसा जैसा अन्न वैसा मन। तो अ, मतलब खाने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। बट मेरे ख्याल से ना, ये जो खाने वाली चीज है वो सबसे ज्यादा लोग कम उस चीज को एडॉप्ट कर पाते हैं, और इस चीज पे फोकस या वर्क नहीं कर पाते कि उनको अच्छा खाना चाहिए या उनको सात्विक खाना खाना चाहिए, सो दैट उनका मन अच्छा रहे और सरल रहे। और आई कॉन्शियसली। थिंक आजकल तो लोग समझ रहे हैं इस चीज को। आई थिंक मनीषा दे आर अंडरस्टैंडिंग एट एन एक्सटेंट। ओके। बट आज ओके। भी हम लोग क्या है कि मार्केट में जैसे, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट डू इट, बट जैसे हम्म। ये दिख गया वो खा लिया, वो दिख गया वो खा लिया। अच्छा, बच्चे भी वैसे हम्म। हो जाते हैं। वो हम्म। एक एक्सटेंट पे ही होना चाहिए, और उसे मतलब हम्म। सुधारा जा सकता है, ताकि हम ओके। आने वाली जनरेशंस को क्या देंगे, ये सोच के अगर आप करोगे तो आप सही कर लोगे। You'll speed up with that. नाइस। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके रखना है हमको। अगर आप कॉन्शियसली एक्ट करना चाहते हैं तो। हाँ, ऑब्वियसली। मैं बहुत सारे, मतलब मैं खुद ही बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनती रहती हूँ कि मतलब वो ना इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों को देखा होता है, और मतलब वो देखते हैं हाउ हैप्पी दे दे आर। तो उनका ये क्वेश्चन होता है, कैसे हैं वो इतने खुश, कैसे हैं वो इतने सेटिस्फाइड, क्या करें हम। तो मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा। इट्स वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, यार मेरे को भी उस जर्नी में जाना है, मैं कैसे शुरू करूं, मैं क्या करूं। सो फॉर दोज, मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि आप कॉन्शियसली जीना शुरू करिए, कॉन्शियसली खाना, सोना, सोचना, चॉइसेस, डिसीजंस, ये सारी चीजें जब आप कॉन्शियसली करना शुरू करेंगे, आप अपने आप ही एक स्पिरिचुअल स्पेस में एंटर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट देयर जर्नी बाय लिविंग कॉन्शियसली। So now I will jump into my, I think the last question. No, second last. Okay. Uh, so, as an entrepreneur, I just want to, I mean, you are an entrepreneur, you come with a lot of experience and a lot of expertise. I just want to know ki, as an entrepreneur, how do you balance business demands with the need with of self care and spiritual nourishment? मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं या जब हम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ केयर कहीं ना कहीं मिस आउट होने लग जाता है हमारी लाइफ से। तो आप उसको कैसे इतनी अच्छी तरह से बैलेंस करते हो? Mm, okay. So for this, I'll answer you in a very small thing, but you'll understand this. ओके। Uh, I never wanted to be entrepreneur, but जब ओके। मैं पैदा हुई, मेरी हम्म। प्रोफेसर मम्मा ने रेस्टोरेंट शुरू किया मेरे नाम के लिए। ओके। हम्म। ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। हम्म। अच्छा, although they were service class, still, अच्छा, my husband, who happens to be an IITian, and he studied, financial analytics. But कहाँ वो किस्मत कहाँ से कहाँ टकराती है, और वो खुद उस चीज में आए। Then what happens is that I joined, और ये ओके। चीजें एक के बाद एक होती गई। यू विल नॉट बिलीव दिस कि जब मेरी अवेकनिंग हुई, और आज भी मैं 3:15 बजे मेरी आंख खुल जाती है रोज। 4 बजे मैक्स मुझे नहाना ही पड़ता है, ताकि मैं अपने रिचुअल्स कंप्लीट कर सकूं। मतलब 10 बजे की अगर आप बात करो सुबह की, तो मेरे लिए आधा दिन होगा। आई स्लीप एट 9, आई वेक अप एट 3:20 4 मैक्स, एंड देन आई स्टार्ट माई थिंग्स। तो ये एक, एक्चुअली अगर आपको टाइम निकालना है ना, और आप जरिया हो, अगर आप मीडियम हो, आप एक लाइट वर्कर हो, तो भगवान आपका सहारा खुद बनेंगे, और वो ही कहेंगे चल हाथ पकड़ लेते हैं, उठ जा। अगर आप सोना चाहोगे, वो सोने नहीं देंगे कि भैया उठ जा, अभी याद कर ले। कम ऑन, यू हैव टू डू मैनी थिंग्स। यू हैव टू रेज द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ। कम ऑन, स्टार्ट योर रिचुअल्स। मैं किसी के लिए नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मैंने फ्री ऑफ क्लासेस ली हैं, ठीक है, रेकी की। मुझे रेकी नहीं सिखाया गया, इट वाज डिवाइन थिंग, गाइडेंस, के मुझे ये आना चाहिए, एंड आई ओके। हैपन टू डू दैट। ठीक है। तो मैंने मास्टर क्लासेस ली, मैंने वो चीजें की हैं।
बट मैंने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि मेरे पास यू कैन कम, या मुझे ये चीज करनी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे, मेरा सोल मिशन ये है कि मुझे इस तरीके से ही करना पड़ेगा. आई कैनॉट बी अ हीलर हु विल टेक सम थिंग्स, या मुझे इन उसका लिए कुछ लेना पड़ेगा. अच्छा, दूसरी चीज, टाइम की बात. यू वोंट बिलीव, मेरा बच्चा आर्यन इज एन इंडिगो चाइल्ड. वो 18 महीने का था, उसने कारगिल में चलना सीखा है, जहाँ मतलब लोग तक जाना नहीं संभव करते हैं. द्रास इज अ सेकंड प्लेस, रिमोट एरिया है वहां पे. मैं अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में. पूरे होटल में हम ही होते थे क्योंकि साइट का काम चलता था. तो जैसे करना है, बिकॉज इट्स अ वर्जिन लैंड, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था कि मैं अपना जो भी टास्क है या रिचुअल्स है बहुत आसानी से करती थी. एंड थैंक गॉड, टच वुड, कि मेरे हस्बैंड ने इस चीज में कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं की. ही इज लाइक, ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स दैट वो अपनी लेवल में, वो है कुछ, वो कर रही है, उसे होने दो. ही विल नेवर इंटरफेयर इन दैट. तो ये एक चीज थी. टाइम निकालने की बात आई तो पहले तो था टाइम ही नहीं, फिर लगा यही तो है, यही तो कर रहे हैं, अब तो टाइम ही टाइम है. अब चाहे जैसे भी हो, अगर रोटी भी बना रहे हो तो भी नाम स्टार्ट हो जाता है. तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपसे करवाई जाएंगी. ओनली थिंग इज यू मैनिफेस्ट देम. द Okay. वर्ड इज मैनिफेस्टेशन. इफ यू Yeah. रियली नीड इट, you will get it. Trust me for this. Wow. Cosmos and universe knows it. Hmm. पर आप चाहते ही नहीं हो. आप चाहते हो नहीं, आज मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं, फिर वो बाद में पेंडिंग कर लूंगा, तो फिर वो पेंडिंग ही Hmm. रहेगा. Nice. ये है. Very nice. Okay. ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम निकाल पाओगे. इट्स लाइक इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू डेडिकेट दैट टाइम. और कॉलिंग की वो आपको, जैसा आपने बोला कि आप सो ही नहीं पाते हो, आप उतने बजे उठ ही जाते हो क्योंकि आपको वो मैसेज रहता है कि मेरे को करना है, करना है. नाइस, वेरी नाइस. मैनिफेस्टेशन, ब्यूटीफुल वर्ड. लाइक आई मैनिफेस्टेड यू ऑन माय फर्स्ट पॉडकास्ट. Yeah. Great, like you're a great manifesto then. Yeah, this is, I think, my manifestation, obviously, because I thought about it quite long back. So thank Mm, you. The last you question, received without it. taking. Thank you. Yeah. Gratitude. नाउ ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद विल वाइंड अप. As we are very near to the end of our conversation, is there any final piece of wisdom, advice you want to share with our audience who want to be in the spiritual journey, जिससे वो अपनी mental well-being को better कर पाए, एक better human being बन पाए? What last piece of advice you want to share? And last piece of advice, and I would like that everyone should notice and write it down, that Okay. you are in form of human. आपको ये भूलना नहीं है कि आप हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं. सो Hmm. प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. वेल बींग का सवाल जहां तक आता है, सबसे बड़ी बात यही है कि यू आर वेल स्टेब्लिश्ड सोल इन योर सेल्फ. आपको Hmm. भगवान ने पूर्ण रूप से विकसित इंसान के रूप में एकदम तैयार होके भेजा है. तो ये कहीं से भी ना समझें कि हम मेंटली अपंग हैं, अविकसित हैं, हमें ये डेवलप करना है या सीखना. नहीं, वो स्किल्स हैं. वो ईश्वर की इच्छा है कि आप कितना सीख पाते हैं. बट यू आर बेस्ट इन योर सेल्फ. यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एवरी आइडेंटिटी इज बेस्ट इन इट सेल्फ. सो ओनली थिंग Mhm. इज दैट ये चीज जैसे हनुमान जी को याद दिलाई जाती है, मैं चाहती हूँ कि पूरी, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं आज आपके Mhm. माध्यम से, थैंक यू मनीषा फॉर दिस, प्लीज ये चीज याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, और उसका धन्यवाद दीजिए कि आप सांसें ले रहे हैं. और आपको अगर स्पिरिचुअल जर्नी में, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं, क्योंकि आत्मा से जुड़ाव या आत्मा को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म Mhm. है. जैसे सांख्य Mhm. ज्ञान होता है, जो बिलीव Mhm. करता है कि ना वो ईश्वर में बिलीव करता है, ना वो उसके ना होने में बिलीव करता है. ठीक है, Okay. स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा है, जो Mhm. चीज जैसे है
यूनिवर्स है, यूनिवर्स के यूनिवर्सल लॉज अलग रूप से चलते हैं और आप हम्म। उससे हट नहीं सकते। ये आप मान लीजिए, अगर आपने कोई चीज गलत की तो आपको उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिलेगा। पर न्याय और जस्टिस 100% कॉस्मोस करती है। सो आप जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए रहिए। ओनली थिंग इज यू शुड वर्क एज एन इंडिविजुअल ऑन योर सेल्फ। वेलबींग का छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, वो तुम देखो। वेलबींग का कोई बात नहीं, मेरा टास्क मैंने कर लिया है, अब तुम्हारी इच्छा, तुम कितना उस पर वेलबींग करते हो। तो सरेंडर, द फर्स्ट वर्ड इज सरेंडर, द लास्ट वर्ड इज सरेंडर। फ्रॉम cradle to grave, it's only the word that is surrender. Leave rest, surrender, and leave your best. That's what I want to say. Wow, beautiful message. Thank you so much. This is really like so insightful that we need to understand. We haven't came here with anything and we're not going to go with anything. We just need to be at the Yeah, just surrender mode live always. in a very simple way. Why you're that serious about everything? You don't Yeah. have to. Hmm. चला हाँ गया, ये जाने तू। भी आ गया तो आ गया, चोरी हो गया, आप क्या करें, कितना रो लोगे। So just let it go. Hmm. Flow, just flow and fly. नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज ना ये वाला पॉइंट जो आपने बोला ना, लाइफ को बहुत ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगता है लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है ना पीस वाला और सेटिस्फैक्शन वाला, वो इसलिए भी ज्यादा रहती है क्योंकि वो हर छोटी चीज को ना बहुत बड़ा बना लेते हैं और बहुत सीरियस हो जाते हैं। किसी ने Yes. कुछ कह दिया छोटा सा, उसमें बहुत मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गया माइंड, कुछ हो गया। तो बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को इतना सीरियसली ना लें। हर चीज मैटर करती भी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना नहीं, अगर मतलब। किसी ने कुछ कहा भी है हाँ तो हाँ। आप वो सोचेंगे, आपने थॉट्स में भी उसको बहुत कुछ कह दिया, उसका रिजल्ट हम्म, ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद वो भी खत्म हो जाना है। उसकी नश्वरता या उसकी एक्सपायरी डेट भी है, उस थॉट की भी, उस इंसिडेंट की भी, उस इंसान की भी। एवरीथिंग हैज हम्म, एन एक्सपायरी डेट, सो व्हाई टू वरी। जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड जस्ट चिल, रिलैक्स। दैट्स हाउ द स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। अगर आप ये सोचते हो कि स्पिरिचुअलिटी में तो हाँ मजे आ गए, या एकदम इट्स लाइक द रोज गोल्ड थिंग, द ब्लू मून्स एंड द स्टार्स आर लाइक गुड, नहीं। हाँ हाँ। वो आग पे तपने जैसे के काम होता है, हर किसी के बस का नहीं है। पर हर किसी के तब बस हम्म, का है जब वो ये ठान ले कि नहीं, मुझे तो अपने हिसाब से जीना है, और मुझे ऐसे जीना है कि मैं किसी भी चीज से मुझे फर्क ना पड़े, और मैं किसी को दर्द ना दूं। वो स्पिरिचुअलिटी होती है। ओके। आई थिंक इट इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ और अ वे ऑफ लाइफ जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं हर कोई। ब्यूटिफुल। Yes, true. Beautiful, beautiful. I learned a lot and loved the complete session. Thank you so much for sharing these Thank you, Manisha. beautiful, beautiful nuggets. And I'm very, very sure that people who are going to listen, watch you, your energy is so pure. You have spoken like your own experience and your wisdom so well, but in a very simplified way. It's amazing. So thank you so much for your beautiful energy, your time, your wisdom, everything that you have shared with us today. So now, with the Thank note, you, Manisha. Gratitude. thank you. God bless and do well. Do well and best. Be best for yourself. That's what I just bless you for. I loved it. Thank you, ma'am. So we are ending our session. Love you. Thank you. Love Bye. you. Take care. Bye bye. Namaskaram, everybody. Thank you.